ناظرین آداب، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے سرخیاں۔ جموں کشمیر سے لے کر ملک کے دوسرے حصوں تک کورونا معاملات میں اچھال کا رجحان لگاتار جاری، معاملات زندگی بہت حد تک اثر پذیر۔ ایل جی کے مشیر بصیر خان نے جنوبی کشمیر کے 2 اضلاع میں لیا ابھرتی صورتحال کا جائزہ، وبا پر قابو پانے کے لیے کیا سبھی متعلقین کا تعاون طلب۔ بڑگام میں ڈی آر ڈی او کے تحت زیر تعمیر کووڈ ہسپتال کو 35 دنوں کی مدت میں مکمل کرنے کا نشانہ، ڈی کام نے کیا ہسپتال کی جگہ کا دورہ۔ اور جموں کشمیر کے سابق گورنر جگ موہن کے انتقال پر 3 دن کی سرکاری سوگ کا اعلان۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جموں کشمیر میں گزشتہ کئی ہفتوں سے جاری کورونا وبا کی دوسری لہر نے ہر خاص و عام کو کسی نہ کسی طرح سے متاثر کیا ہے، جبکہ معاملات زندگی بھی بہت حد تک متاثر ہوئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق مختلف جانچ لیبارٹریوں سے آج بھی سینکڑوں نئے مثبت معاملات کی نشاندہی ہو گئی، جبکہ کئی مریضوں کی فوت ہونے کی بھی خبر ہے۔ خبریں جاری ہیں، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ کینسر سوسائٹی آف کشمیر کینسر سے جوجھ رہے غریب اور نادار مریضوں کے لیے مفت علاج و معالجے کا منفرد مرکز، آپ کے صدقات، خیرات اور زکوٰۃ کا مستحق اور معتبر ادارہ۔ آپ اپنے رقومات ہمارے اکاؤنٹ نمبر SB 6000 JNK بینک ریزیڈنسی روڈ میں جمع کر سکتے ہیں یا ہمارے دفتر واقع لال نگر چھانپورہ تشریف لائیں۔ سری نگر اور مضافات میں روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا ہے، افطار کیجیے۔ اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت۔ ناظرین، پھر سے آپ کا استقبال ہے۔ سرکاری میڈیا بلٹن کے مطابق آج مزید 4650 مریضوں کی نشاندہی ہو گئی، جن میں سے 3187 صوبہ کشمیر اور 1463 جموں ڈویژن سے ہے۔ آج بھی 37 کورونا مریضوں کی موت واقع ہو گئی۔ اب یو ٹی میں ایکٹیو مریضوں کی تعداد مزید بڑھ کر 37,302 ہو گئی ہے۔ ادھر ملکی سطح پر بھی وبائی صورتحال تشویشناک بنی ہوئی ہے اور آج بھی زائد از 3,57,000 نئے مریضوں کی نشاندہی ہو گئی ہے، جبکہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 3,449 کووڈ متاثرین کی موت بھی آج واقع ہوئی۔ سردست ملک میں ایکٹیو متاثرین کی تعداد 34,47,000 ہے، جبکہ صحت یابی کی قومی شرح مزید گر کر 81.91% پر آ گئی ہے۔ کووڈ 19 کے خلاف بھارت کی ٹیکہ کاری کی مہم میں مزید تیزی آئی ہے اور مجموعی ٹیکہ کاری کی تعداد اب تک 15,89,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے ٹیکہ کاری پروگرام میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں 17 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ صحت کی وزارت نے بتایا ہے کہ ٹیکہ کاری کی مہم کے آغاز کے بعد سے 108 دن کے اندر ملک میں تقریباً 13 کروڑ لوگوں کو پہلا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے۔ دوسری طرف تقریباً 2,90,00,000 لوگوں کو ویکسینیشن کے دونوں ٹیکے لگائے دیے گئے ہیں۔ بھارت کی ٹیکہ مہم کے تیسرے مرحلے میں اب تک 4 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ مرکزی سرکار نے ریاستوں اور مرکز کے زیر اہتمام علاقوں کو اب تک 16,69,00,000 ٹیکے مفت فراہم کیے ہیں۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے کہا ہے کہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے پاس اب بھی 75 لاکھ ٹیکے موجود ہیں۔ وزارت نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو آئندہ 3 دن کے اندر 48,41,000 سے زیادہ ٹیکے مہیا کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ صحت کی وزارت نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے خلاف لڑائی میں ٹیکہ کاری ایک مہم ستون ہے اور ملک میں کووڈ 19 کے خلاف تیسرے مرحلے کی ٹیکہ کاری پہلے ہی شروع کی جا چکی ہے۔ رکتے ہیں ایک وقفے کے لیے۔ بچے پانی کی بوتل کے ساتھ سب کچھ کریں گے سوائے پانی پینے کے، پر دن کے 8 گلاس پانی ضروری ہے نا۔ ٹینگ تھوڑی مدد کر سکتا ہے، اس میں ہے گریپ فروٹ ٹیسٹ، وٹامنس اور آئرن کی اچھائی۔ ٹینگ ملاؤ، پانی پلاؤ۔ کووڈ کی دوسری ویو سے بچیں۔ ہم نے کورونا میں ایک اپنے پریوار کا بہت ہی امولیہ سدسیہ کھو دیا ہے، اور اس دکھ کا سامنا جو ہم کر رہے ہیں ایسا کسی کو بھی نہ کرنا پڑے، اس لیے میں گزارش کروں گی سب بھارت واسیوں اور جموں کشمیر کی جنتا سے کہ سرکار کی طرف سے جو بھی کورونا سے بچنے کے نیم بنائے گئے ہیں ان کا پوری طرح پالن کریں اور ہماری طرح اپنے پریوار کے کسی بھی سدسیہ کو نہ کھو دیں۔ اس لیے
मास्क पहन कर रखें, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं और बारी आने पर कोविड वैक्सीन जरूर लगवाएं। इसलिए जो भी सरकार ने कानून बनाए हैं उनका पालन करें। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। फिर से आपका खैर मकदम है। इस दौरान वादी में कोरोना के इंसदाद के लिए कोरोना कर्फ्यू बदस्तूर जारी है। शहर श्रीनगर समेत दीगर सभी अजला में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल है, जबकि बाजार भी एहतियाती तौर पर बंद है। सड़कों पर सरकारी एडवाइजरी के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं चल रहा और आम लोग भी एसओपीज पर अमल दरामद करते हुए अपने ही घरों में ठहरे हुए हैं। इस दौरान कई मकामात पर लॉकडाउन की अदूली करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। कुंजर पुलिस ने छिछलोरा इलाके में एक वर्कशॉप समेत कई दीगर तजारती इदारों और दुकानों को सरबेमोहर करते हुए इनके मालिकान पर मुकदमा दर्ज किया। पटन और सिंहपुरा में भी पुलिस ने इसी तरह की कार्रवाई अमल में लाई। बांडीपुरा पुलिस ने भी कोरोना पाबंदियों की धज्जियां उड़ाने वाले 2 दुकानदारों और 5 ड्राइवरों पर मामला दर्ज किया है। जिला के तरक्याती कमिश्नर के मुताबिक एहतियाती कर्फ्यू की अदूली करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रखी जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान आज जनूबी कश्मीर के 2 अजला पुलवामा और शोपियां में कोविड वबा से निपटने के इकदाम और इसकी वजह से पैदाशुदा मौजूदा सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। डीसी ऑफिस पुलवामा में अफसरों, पंचायती राज इदारों और अर्बन लोकल बॉडीज के अरकान, ट्रेडरों, ट्रांसपोर्टरों और मजहबी लीडरों के साथ सिलसिलावार मीटिंगों की सदारत करते हुए मुशीर मौसूफ ने कहा कि तमाम अहले अफराद के लिए टीकाकारी को लाजमी करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि वबाई सूरत हाल से बाहर निकलने के लिए सभी मुतल्लिकीन का ताउन अजहद जरूरी है। शोपियां में मुशीर मौसूफ ने इसी तरह की मीटिंगों की सदारत के दौरान जिला में वबा से निपटने की तैयारियों और एसओपीज पर अमलावरी का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में किसी भी मुकदमे में कोई भीड़ भाड़ जमा नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने शब कदर और ईद उल फितर की नस्बत से डिप्टी कमिश्नरों को एक्सीजेंसी प्लान मुरतब करने के लिए कहा। सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोली ने आज ऋषिपुरा बड़गाम जाकर वहां डीआरडीओ के 500 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल पर काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। उनके हमरा डिप्टी कमिश्नर बड़गाम शहबाज मिर्जा के अलावा डीआरडीओ की एक टीम और मुतल्लिका महकमों के सरबराहां भी थे। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि ये प्रोजेक्ट 35 दिनों की मुद्दत के अंदर मुकम्मल होना चाहिए, जिसमें 125 बेड आईसीयू और बाकी के बेड ऑक्सीजन सप्लाई की सहूलियत से लेस होंगे। जायद 70 कनाल अराजी के रुकबे पर बन रहे इस अस्पताल के लिए अप्रोच रोड तामीर किया गया है, जबकि इस जमीन पर मौजूद दरख्तों को काटने का काम भी जारी है। जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर जगमोहन का इंतकाल हो गया है। वो 94 बरस के थे। जगमोहन अटल बिहारी वाजपेयी की काबिना में शहरी तरक्कियाती मवासिलात, सियाहत और कल्चर के वजीर रह चुके हैं। वजीर नरेंद्र मोदी और कई मरकजी वुज़रा ने उनकी वफात पर दुख का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा समेत कई दीगर सियासी शख्सियात ने भी उनके फौत होने पर दुख और सदमे का इजहार किया। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने आंजहानी रहनुमा के सोगबाश होने पर 3 रोज तक सरकारी शोक का ऐलान किया है। नथीपोरा सोपोर में आज सपहर मिलिटेंटों और हिफाजती अमले के दरमियान झड़प शुरू हुई। आईजीपी कश्मीर के मुताबिक वहां एक गैर मुल्की मिलिटेंट जो 2 काउंसलरों और एक पुलिस एहलकार की हलाकत में मुलविस है छुपा हुआ है। झड़प से मुतल्लिक मजीद तफसीलात का इंतजार है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने आज रैनावारी श्रीनगर में कायम जवाहरलाल मेमोरियल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की कारगुजारी के अलावा कोविड-19 मरीजों के लिए सेहतियाबी सहूलियत का जायजा लिया। इस मौके पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर, सीएमओ श्रीनगर और दीगर कई ऑफिसर भी मौजूद थे। जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने जिला की ताजिर बरादरी से एक मीटिंग की। मीटिंग का मकसद ताजिर बरादरी को दरपेश मसाइल और तबादला ख्याल करना था। इस मौके पर कमिश्नर मौसूफ ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी तमाम जायज मांगों को मुतल्लिकीन के नोटिस में लाया जाएगा। उन्होंने ताजरों से कोविड-19 से मुतल्लिक एसओपीज पर सख्ती से अमल पैदा होने के सिलसिले में ताउन तलब किया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने आज जिला के डॉक्टरों की एक मीटिंग में एसडीएच कुपवाड़ा को कोविड अस्पताल के तौर मुख्तस रखने से मुतल्लिक इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर बताया गया कि नॉन कोविड मरीजों के इलाज और मुआवजा के लिए सोगाम और हंडवाड़ा के अस्पतालों में सहूलियात बढ़ाई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमेटी शोपियां की तरफ से आज अवामी भीड़ भाड़ वाली जगहों जैसे कोर्ट कॉम्प्लेक्स, डीसी ऑफिस के मुतसिल इलाके, जिला अस्पताल और दीगर बाजारों में
छिड़कावी मुहिम चलाई गई। म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन सुभाष गोयल के मुताबिक म्युनिसिपल काउंसिल इलाके में इन्फेक्शन को काबू में करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहा है। म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल के मुलाजमीन ने आज दफ्तर के सामने कोविड-19 की रिपोर्टों में ताखीर के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। उनके मुताबिक महकमे सेहत ने 27 अप्रैल को उनसे नमूने हासिल किए, लेकिन ताहर रिपोर्ट फराहम करने से महकमा अभी भी कासिर है। उन्होंने मुतल्लिकीन पर जोर दिया कि वो नमूनों की दादाई जल्द अज जल्द जाहिर किए जाए ताकि वो इत्मीनान की सांस ले सके। एसएमसी के मेयर जुनैद अजीम मद्दू ने आज कॉर्पोरेशन के सीनियर अफसरों के साथ एक मीटिंग में सेहत व सफाई वर्क्स डिवीजन, ड्रेनेज, टाउन प्लानिंग और स्ट्रीट लाइटों से जुड़े कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने ठोस फुजले और कचरे को ठिकाने लगाए जाने से मुतालिक मैकेनिज्म को अपग्रेड करने पर भी गुफ्तशनीद की। बड़गाम जिला में आज उस वक्त एक ट्रैक्टर ड्राइवर हलाक हुआ जब वो अपने ही ट्रैक्टर की जद में आ गया। पुलिस के मुताबिक ज़हूर अहमद डार ड्राइवर ट्रैक्टर पर काबू पा न सका, जिसके बाद ये उलट गया और मज़कूरा ड्राइवर इसके नीचे दब गया। हादसे में 11 बरस का एक बच्चा जख्मी हुआ, जिसे मकामी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। डोडा जिला में छपनारी बगवा के करीब सड़क के एक हादसे में महकमे सेहत का एक कारकुन मौके पर ही जान बहक, जबकि 2 दीगर जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक ये लोग एक मारुति में सवार थे जो हादसे का शिकार हुई। जख्मियों को जीएमसी डोडा इलाज मुआवजा के लिए मुंतकिल किया गया। हादसे में जान बहक हुए फर्द की शिनाख्त लसा शेख के तौर पर हुई है। नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज पदगामपुरा पुलवामा में सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म का दौरा किया, जहां उन्होंने दान की पनीरी तैयार करने के लिए मैट डीएपीओजी नर्सरी टेक्नोलॉजी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुतल्लिका अफसरों और तकनीकी अमले से बात करते हुए नाज़िम ज़राअत ने दान की बुआई और दीगर ज़रूरी फसलों में जदीद टेक्नोलॉजी दायज करने की अहमियत उजागर की। इससे पहले सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म के मैनेजर एजाज अहमद ने मुख्तलिफ सरगर्मियों और प्रोग्रामों से मुतल्लिक एक प्रेजेंटेशन दी। खलीफाए चहरुम हजरत अली मुर्तजा करम तआला वजहू की योम शहादत के मौके पर अपने पैगामात में जमीयतुल हमदानी के सरबरा मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने कहा है कि शाही विलायत मौलूद काबा अबू तुराब और फातिह खैबर को अल्लाह ताला ने इल्म और हिकमत के लाफानी खजानों से मालामाल कर दिया था और उन्हीं खुसूसियात की बिना पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दख्तर नेक अख्तर सैयदतुल निसा हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रहमतुल्लाहि अन्हा का निकाह हजरत अली रहमतुल्लाहि अन्हा से किया था और हजरत शाही मुर्दान रहमतुल्लाहि अन्हा की शुजाअत ता क़यामत तक याद रखी जाएगी। और अब मौसम। महकमे मौसमियात की इतला के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 24.3 डिग्री, जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 13.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 34.2 डिग्री, जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 26.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब हैं। इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।